अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि अक़ीक़ा फ़ंक्शन, ये अक़ीक़ा क्या चीज़ है? अक़ीक़ा मैं आपको डिटेली समझाऊँगा। थोड़ा-सा मेरा पार्ट होगा अंग्रेज़ी में, जो ऑडियंस उर्दू नहीं जानते वो लोग भी समझ पाएँगे कि अक़ीक़ा फ़ंक्शन होता क्या है। ये एक्चुअली हमारे भांजे के फ़ंक्शन में मैं था, जो मेरा नेफ्यू है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इसके डिटेल समझाऊँ। पहले मैं अक़ीक़ा का जो डेफ़िनेशन प्रोसेस होता है वो अंग्रेज़ी में समझाऊँगा। मैं ऊपर जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। सो गाइज़, ये देखिए, ये फ़ंक्शन हॉल है, अमान फ़ंक्शन हॉल, जो मेहदीपट्टनम के इलाके में है। थोड़ा-सा यहाँ का एक थिएटर है, अम्बद थिएटर, उसके थोड़े से आगे में है। अब यहाँ पर ये फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऊपर जाऊँ और अक़ीक़ा क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है? चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखो गाइस, मैं अब जो है ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये 4th फ्लोर पर फंक्शन ऑर्गेनाइज है। ये एक बैंक्वेट हॉल है एंड आई विल ट्राई टू शो यू द कंप्लीट थिंग्स नाउ। अब ये देखिए, जैसे कि ये जहाँ पर ऑर्गेनाइज है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट, ओके? Is on the thumbnail you have seen that Aqiqah function. So what is this Aqiqah function? What is Aqiqah actually? Aqiqah is nothing but your sunnah. Sunnah is the tradition and practices of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. So this process of Aqiqah has to be done by his followers and all of the people who are in the Muslim religions. So I'll tell you what are the things which has to be performed in the Aqiqah. This particular function is done in honor of a childbirth. When Allah subhanahu wa ta'ala blessed you with a baby boy or a baby girl, what are the things you must perform? If you are blessed with a baby boy, you need to sacrifice 2 goats or sheep in honor of a baby boy. If you are blessed with a baby girl, you need to sacrifice at least 1 goat in honor of a baby girl. That is the respect and honor pays towards the children in Muslim religions, and in other religions also certain other techniques are followed, but in this Muslim community you need to follow this particular type of process. Now whatever the meat you are going to get through this process, that meat you can keep it with yourself, or you can distribute it with the poor people or your friends and family members, anything. There are no certain kind of restrictions to it. You can perform anything, whatever you like to do it. Suppose you perform the Aqiqah functions on the 7th day or any other day which is recommended. You need to tonsure or shave the head of a child, and you need to calculate the weight of that particular hair, okay? After that, whatever the weight you will get it, that much amount of silver or gold you need to buy it, and you need to distribute it to the poor people. This is one of the most beautiful concept, okay? After tonsuring, or you can say the shaving of the head is performed, the head has to be washed with milk which is containing with saffron. Maybe at that time the companions used to follow that particular process. Maybe at that time they were looking out for the what do you say, antibiotics, something like that. So they used to clean the head of a child with milk and saffron. So these are the things which was performed at the time, and the same things are getting followed now also. Hope you like my informations. If you like this, kindly subscribe to my channel, like and comment it, guys. मैं आपको जो है बाहर की तरफ लेकर जाता हूँ। जैसे बैंक्वेट हॉल होती है ना, फंक्शन का कैसा होता है देखिए। आई गेस कैमरा शेक नहीं हो रहा है। ये देखिए, मेरी फैमिली है कम्प्लीटली, ठीक है? यहाँ पर देखिए, समझ भाई, इधर देखो, यहाँ पर देखिए, ये मेरी फैमिली है कम्प्लीटली, जितने भी लोग हैं मेरे रिलेटिव्स हैं, ओके? ये देखिए। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ये जो बैंक्वेट हॉल है, इसमें मतलब छोटा छोटा सा स्पेस है। देखिए, बिल्कुल एक 200 पीपल के लिए, एक छोटे छोटे फंक्शंस के लिए ये अरेंज किया जाता है, ठीक है? ओके, ये देखिए, ये सारे मेरे भाई लोग हैं। चलिए देखिए, पीपल आर एंजॉइंग नाउ। जब मैं डाइनिंग सेक्शन में जाऊंगा तो आपको वहाँ पर भी बताने की कोशिश करूँगा।
ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना, जो जोधपुरी पे है, एक्चुअली इनके बेटे का फंक्शन था, मेरे ब्रदर इन लॉ है। एंड ये देखिए जो सामने और एक ब्रदर इन लॉ, वो भी जोधपुरी पे है। और बस यही है, ठीक है। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, देखिए डॉक्टर है अपना, जो आपको रिसेंटली मैं इंटरव्यू बताया था डॉक्टर की, ये है अदनान खान है या क्या है पता नहीं, लेकिन अदनान तो है, ठीक है। चलिए मैं आपको और भी शॉट्स कवर कर दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए ये सारे मेरे रिलेटिव्स ही हैं, ठीक है। रिलेटिव्स में ही हैं कामरान, राइट। सो एक छोटे से फंक्शन में छोटा सा फंक्शन हो रहा था, बस ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, आप लोग बोर हो जाएंगे फिर। ओके सीरियस, ओके ये क्राउड है एंड ओके जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। चलिए मैं इसके बाद आपको डाइनिंग सेक्शन बताता हूँ कैसा रहा। अगर मैं ये मेरा नेव्यू है, देखिए जिसका हो रहा है। ओके चलो मैं रखता हूँ। ये 2 जो है हमारे ब्रदर इन लॉस हैं, माशाल्लाह, ऊपर भी लिखा हुआ है एंड दिस आर द फेलोज। ओके राइट, मैं आपको और कवर कर दिखाता हूँ कैसे। ओके जो आप मिडिल में देख रहे हैं, ही इज़ द एल्डेस्ट अमंग ऑल द पीपल एंड ही इज़ अराउंड 96 years old guys. He was custom officer when he was young. Now he retired and you can imagine how beautifully he is living and he's the fittest personality among all of us. यही मैं बताना चाह रहा था। So देखिए और भी देखिए लोग, see the child and you can see this, okay right. सो दोस्तों ये जो है डाइनिंग सेक्शन है जहाँ पर पार्टी अरेंज की गई थी। ये अमान फंक्शन हॉल है मेहदीपट्टनम का, ठीक है। ये बैंक्वेट हॉल है, मतलब छोटे मोटे फंक्शंस किए जाते हैं इसमें, तो ये हकीकी का फंक्शन इसमें परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये फैमिली गैदरिंग भी थी साथ में, हाँ जी फैमिली गैदरिंग थी, तो साथ में छोटा सा फंक्शन था हकीकी का। तो मैं आपको और भी क्राउड से भी बताऊँगा कि कैसा है। सो गाइज़ ये देखिए डाइनिंग सेक्शन है और ये जो सामने दिख रहे हैं जो मेरे भांजे के पापा हैं जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। और मैं डिशेस आपको बताता हूँ कि कैसे होते हैं। ये देखो भाई, ये जो फर्स्ट डिश आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड एज मरक। फिर ये है मटन करीज़ एंड सी द मटन हलीम है। फिर आपको मीठे में रबड़ी है, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। एंड दे आर माई इंटरव्यूज़, दिस फेलो एंड दिस फेलो, जो आपको डॉक्टर की इंटरव्यू भी हो गई थी और इस तरह पलटा नहीं सकता, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है। तो बस इतना बताना चाहता था कि कैसे होता है हैदराबादी फंक्शन। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको और भी जो भी अच्छा आइटम मिलता है मैं बताता रहूँगा। तो गाइस फाइनल सेशन में देखिए इस तरीके से गार्लैंडिंग की जाती है चिल्ड्रन की आफ्टर द हकीका फंक्शंस और इन द हकीका फंक्शन द लास्ट एंडिंग पार्ट। Okay. Hey guys, subscribe to my channel Hyderabad Routines. Okay, right? Thank you. So ये देखिए, the child is performing the particular form of rituals. देख रहे हैं आप? Okay, right. Thank you. और चलते रहो. Right. ये देखिए मेडिकल स्टूडेंट भी डाला है। सो दिस इज़ द लास्ट सेशन गाइस, जहाँ पर टू बॉयज़ को ऑनर किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट्स एंड वॉट एवर द प्रोसेस। गार्लैंडिंग भी की जा रही है विद लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फेलोज। द 2 फेलोज आर एंजॉइंग नाउ। गाइस आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा? अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, अकीके का फंक्शन पसंद आया, तो आपको कुछ नहीं करना ही है, सब पीछे वाले बच्चे बताएंगे आपको क्या करना है। गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हैदराबाद रूटीन्स। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।